Now today we will see the next concept, that is array of structures. Okay. Now when we will see the array of structures, when we will see the array of structures, it means the structure is a collection of different types of data. Now one structure variable, it stores the information about one structure. So here we have seen one of the structure variable, that is structure, that is book. Okay. Now here we have seen one of the structure, and that is structure book. Now within the structure book, you can see that here we have seen this struct book. So here we can see that here it is struct book. Now within this struct book, we have int pages, then character book name, character author, and float price. Okay. Now this is the data. This is the one structure. Okay. That structure variable, it stores the information about one book. Okay. It will store the information about one book. Now after the structure, we represent here the structure book. Okay. So here we represent struct book B1. So here B1, it means we can store a single book data over here. Okay. Now when we write here struct book B1, it means we can store the data for one structure or for one book. We can store the data. But now the case is when we want to store the value for more than one book. Okay, or more than one student. So at that time what we will do, so at that time we will use the array of structures. Okay. Now just consider that if the information I want to store the information of 100 books, then at that time I want to create 100 structure variables like this. Okay. So it means struct book B1. So I want to create the next 99 variables like this. So it may be the B2, B3, B4 up to B100, right? So there are total 100 structure variables. So we want to create. Now if we create it, now it is not easy to handle that 100 variables, 100 structure variables. To handle and use that structure variables, it is very difficult, and that's why we introduced the new concept, that is array of structures. Okay. It means इसके पहले हमने क्या किया था कि हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने पेजेस डिक्लेयर किए हैं। पेजेस ये एक हमारा इंटीजर वेरिएबल था। बुक नेम हमारा स्ट्रिंग है, ऑथर भी हमारा स्ट्रिंग है, और नेक्स्ट है प्राइस, ये हमारा फ्लोट वेरिएबल है। ओके। तो इस तरीके से हमने 4 वेरिएबल, 4 मेंबर बुक के अंदर डिक्लेयर किए। नेक्स्ट उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रक्ट बुक B1। अगर हम इस तरीके से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ बुक, एक ही बुक का रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकते हैं। ओके। यानी एक ही बुक का नाम, उसके ऑथर और उसकी प्राइस और उसके पेजेस, इतना ही हम स्टोर कर सकते हैं सिर्फ एक बुक के लिए। ठीक है। बट अगर मुझे 100 बुक का डेटा अगर इंसर्ट करना है, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो हमने जैसे यहाँ पे B1 लिखा है, वैसे ही हम यहाँ पे B2, B3, B4 अप टू B100, राइट। तो इस तरीके से 100 वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे। अगर हम इस तरीके से 100 वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो इसे हैंडल करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए हमने और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाई है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज array of structures.
यानी एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स कब यूज करते हैं, जब हमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 वैल्यू चाहिए, 100 बुक का डेटा हमें स्टोर करना है, तो उस केस में हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे। जैसे मुझे 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स का डेटा अगर मुझे इंसर्ट करना है, देन इन दैट केस आई विल यूज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें ज्यादा डेटा यूजर से लेना है, ज्यादा रिकॉर्ड मुझे यूजर से लेना है, then in that case I will use the array of structures. Okay, now here I will just show you. I am sharing my screen to you. Now we will see one of the structure for the student. Okay, so here I am sharing my screen to you. Now what we will do, now here we will create a structure for student. Okay, so now here we will see a structure for student. Now within this, what we will do, so first we create the structure for student. So we write the struct keyword, then structure name. So here student is our structure name, and within this we create certain variables, certain members for the student, that int roll number, second the name, so character name of 10, this is our string. Next we will add the percentage, so float percentage. Okay, so int roll number, character name, it is a string, so character name of 10, then float percentage. So these are the three variables we add within the structure. Okay, now after that what we will do, we will create a structure variable. Now here we just consider that we have to store, or we have to store the record of 3 students. Okay, instead of 100 students, here we will see the record for 3 students, because it will be easy to understand. ठीक है, 100 बच्चों का देखने की जगह हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 बच्चों का देखेंगे। जैसे 3 बच्चों का देखेंगे वैसे ही वो 100 बच्चों का रहेगा। ठीक है, now for that purpose I will write here that when we create the structure variable, okay, when we create a structure variable, we will write that struct student, struct student, and within this, now this is array of structures. Basically before this we have created like this, s1, s2, s3, so it will create only the 3 variables, structure variables। और जैसे हमने s1 को यूज किया था, जैसे b1 को हमने बुक में यूज किया था, वैसे ही s1 को हम यहाँ पे यूज करेंगे, s2 को हम यूज करेंगे, और s3 को भी हम वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर इस तरीके से हम अब हम अगर 100 स्टूडेंट का डेटा अगर लिखते, तो ऐसे ही हमें s1, s2, s3 अप टू s100, तो ऐसे हमें 100 स्टूडेंट्स का डेटा हम यूजर से लेंगे, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s लिखा है, 3 बच्चों का मुझे डेटा लिखना है, तो साइज कितनी हुई हमारी 3, so that's why within the square bracket we write 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा कितने बच्चों का ले रहे हैं, तो 3 ही बच्चों का ले रहे हैं, इसीलिए
एस लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज मेंशन की है, राइट। इसी तरीके से हम एरे लिखते हैं, बराबर है। ये एरे डिक्लेयर हुआ और एरे के पहले ये वेरिएबल किसका है, तो स्टूडेंट का है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, या फिर इसे कहते हैं स्ट्रक्चर एरे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर एरे या फिर एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, हमने देखा है कि वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अब हम देखेंगे कि जैसे देखो, अब हमने तीन वेरिएबल्स, तीन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हम रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड हम सेव कर सकते हैं, जैसे तीन स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और उसके परसेंटेज हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब इसका मतलब, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, राइट। तो आप ये देख सकते हो, तो इस तरीके से इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए 2 बाइट्स, परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए 4 बाइट्स ऑफ फ्लोट, एंड नेम है, तो नेम के अंदर हमने कितनी साइज मेंशन की है, तो सिर्फ 10 बाइट्स हमने मेंशन की है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर नेम ऑफ 10 लिखा है, तो कैरेक्टर नेम ऑफ 10 लिखा है, तो नेम हम सिर्फ 10 कैरेक्टर्स का लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं एरे ऑफ 10 कैरेक्टर्स, तो इसका हम नेम लिख सकते हैं। तो ये तीन चीजें अगर हम यूजर से लेते हैं, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, तो ये होगा हमारा स्टूडेंट 1 के लिए, ठीक है। स्टूडेंट 1 का होने के बाद स्टूडेंट स्टूडेंट 1 का होने के बाद हम दूसरे स्टूडेंट के लिए फिर से नेम, परसेंटेज और रोल नंबर लेंगे, फिर से उसकी साइज वही होगी। ये आर के लिए हमें नेम के लिए हमें 10 कैरेक्टर्स लगेंगे, परसेंटेज के लिए 4 बाइट्स लगेंगे, और रोल नंबर के लिए 2 बाइट्स लगेंगे, राइट। तो ये सेकेंड स्टूडेंट का होने के बाद हम थर्ड स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर करेंगे, फिर से हम यूजर से नेम, परसेंटेज, रोल नंबर हम यूजर से लेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम इसका डेटा सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स देखा। अभी हम देखेंगे कि इसका जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ओके, अब जब ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स में अगर हम डेटा लिखते हैं तो प्रोग्राम किस तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे एरे एंड स्ट्रक्चर है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रोग्राम ही डायरेक्टली लिखती हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स। तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड करती हूँ। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद हम लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यानी स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के बाद यहाँ पे हम सेमी कोलन देते हैं, और उसके बाद, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं void main, okay। Now within the void main we create the structure variable, so struct student s3, स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद हम और एक वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने क्रिएट किया। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू यूजर से लेनी है, ओके। हमें वैल्यू यूजर से लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर लूप, ठीक है। अब कितने यूजर की वैल्यू लेनी है, 3 यूजर की वैल्यू लेनी है। अब देखो, जैसे हमने एरे क्रिएट किया था वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे i इज इक्वल टू 0, ये हमारा एरे है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस, ओके। नाउ बिफोर दिस वी हैव टू डिक्लेयर i, सो हियर इंट i, ठीक है। तो इसलिए हमने i को डिक्लेयर किया। Next, now within this, first we have to take values from user, हमें यूजर से वैल्यू लेनी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये पहला फॉर लूप लिखा है। इस पहले फॉर लूप के अंदर हम यूजर से वैल्यू लेंगे, तो इसलिए हम लिख रहे हैं एंटर रोल नंबर। नेक्स्ट,
यूजर से वैल्यू लेनी है तो कैसे लेंगे? अब यहाँ पे देखो, रोल नंबर इज एन इंटीजर, सो देयरफॉर स्कैनफ %d। नेक्स्ट, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एम्परसेंड। ओके, यूजर से वैल्यू लेनी इसलिए एम्परसेंड। नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर, तो हम क्या लिखेंगे? एस, राइट। नाउ दिस इज array ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दिस इज array ऑफ स्ट्रक्चर्स और दिस इज स्ट्रक्चर array, so that's why within the square bracket we write I। आया समझ में? Next, after that we will write dot operator and then we will write its variable, that is R and O, that is roll number। Okay, again I repeat, when we have to take values from the user at that time, how we will do it? That structure variable, so that is S, this is array of structures, so that's why we will write within the square bracket I, then we will write dot operator and then we will write structure member, that is R and O। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? S3 लिखा है, देखो S3 लिखा है, और हम डेटा किसका ले रहे हैं? अभी हम पहले स्टूडेंट का लेंगे, ये फॉर लूप के अंदर है, इसीलिए पहले फर्स्ट स्टूडेंट का लेंगे, यानी 0th स्टूडेंट का, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकेंड, इस तरीके से 3 स्टूडेंट का डेटा हम यूजर से लेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे स्कैनफ के अंदर क्या लिखा है? तो यस ऑफ आई, डॉट ऑपरेटर हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर के साथ, इसलिए डॉट ऑपरेटर, और किसकी वैल्यू ले रहे हैं हम स्ट्रक्चर में से? तो स्ट्रक्चर में से हम वैल्यू ले रहे हैं रोल नंबर की, तो इसीलिए रोल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि इसके पहले, यानी S3 के पहले हमने सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर यूज किया था। ओके, अब मैं सिर्फ दिखाती हूँ कि कैसे यूज करते थे हम। तो इसके पहले हमने सिर्फ स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 इस तरीके से डिक्लेयर किया था, तो इसका मतलब हम कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखते थे कि %d, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, एम्परसेंड, S1 लिखते थे और हम लिखते थे RNO। ठीक है, अब यहाँ पे S1 की जगह हम क्या लिखेंगे? तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर एरे है, तो स्ट्रक्चर एरे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, सिर्फ यहाँ की वैल्यू चेंज हुई है हमारी, बाकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी की वैल्यूज भी यूजर से लेंगे। तो बाकी हमें लेना है, नेम लेना है यूजर से, सो एंटर नेम। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लेंगे नेम। ठीक है, अब नेम क्या है? इंटीजर है क्या नेम? नो, दिस इज स्ट्रिंग, so that's why this is %s। ठीक है, प्रिंट है एंटर नेम, देन स्कैनफ %s एम्परसेंड s of I डॉट नेम। ठीक है, नेम लेने के बाद हमें क्या लेना है? अब हमें लेने हैं परसेंटेज, so that's why okay, so here printer enter percentage, so enter percentage, और परसेंटेज कौन से डेटा टाइप के हैं? सो इट्स अ फ्लोट डेटा टाइप, सो देयरफॉर %f। और परसेंटेज के लिए हमने वेरिएबल क्या लिखा है? PER। ओके, तो इस तरीके से हम यूजर से वैल्यू लेंगे। वैल्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे? हमें ये वैल्यूज प्रिंट करनी है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो इसीलिए फिर से I is equal to 0, I is less than 3, I प्लस प्लस, इस तरीके से हम वैल्यू यूजर से लेंगे। ठीक है, सॉरी, हमें प्रिंट करनी है, तो इसलिए हम फिर से यूजर से वैल्यू लेनी है, तो इसे भी हमने फॉर लूप के अंदर लिखा है, और अगर हमें प्रिंट भी करनी है तो भी हम फॉर लूप के अंदर ही प्रिंट करेंगे। ओके, तो प्रिंट करने के लिए अभी हमने दूसरा फॉर लूप यूज किया है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं printf। ओके, now within printf what we have to print? We have to print roll number, so here we write roll number। उसके बाद रोल नंबर प्रिंट होना चाहिए, इसलिए %d, कॉमा, अब कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? s of I डॉट रोल नंबर। अभी
इसी तरीके से हमें नेम भी प्रिंट करना है, सो प्रिंट एफ नेम /n, we have to print name, so name, then here we will write %s, after that double quotes close comma. अब नेम कैसे प्रिंट करेंगे, s of I डॉट नेम, ठीक है, नेम प्रिंट होगा और उसके बाद हमें प्रिंट करना है परसेंटेज, तो परसेंटेज प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, /n, देन परसेंटेज लिखने हैं, सो परसेंटेज, परसेंटेज कौन से टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के, इसलिए %f, उसके बाद कौन सी वैल्यू %f की जगह पे प्रिंट होनी चाहिए, तो डबल कोट्स, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो s of I डॉट परसेंटेज, सो PER, ठीक है। इस तरीके से हम यूजर से जो वैल्यू दी थी वो ये वैल्यू हमने प्रिंट की। अभी सबसे लास्ट में हम लिखेंगे गेट ch और प्रोग्राम क्लोज, ठीक है। अभी ये पूरा जो प्रोग्राम है ये हम एज इट इज कॉपी करते हैं और एज इट इज हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चेंजेस करते हैं, यहाँ पे ये हम void main की जगह हम लिखते हैं int main, और नेक्स्ट है गेट ch की जगह हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, रिटर्न 0, ठीक है। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। सो एंटर रोल नंबर, ओके, ये जो था आपको दिख रहा है, ओके, आपको कर्सर दिख रहा है, तो देखो एंटर रोल नंबर, यहाँ पे ये जो एंटर रोल नंबर है, तो यूजर से हमने वैल्यू ली, ठीक है। यूजर से वैल्यू लेने के बाद अभी देखो एंटर नेम, तो नेम में कुछ डालती हूँ, सो नेम डाला और उसके बाद हम कुछ परसेंटेज डाल रहे हैं। अभी ये पहले स्टूडेंट का डेटा हुआ, दूसरे स्टूडेंट का डेटा हम ले रहे हैं, सो इट्स 13, सेकेंड नेम, और उसके परसेंटेज, थर्ड रोल नंबर, थर्ड स्टूडेंट, और उनके मार्क्स, राइट। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका आउटपुट, यानी 3 स्टूडेंट का डेटा लेने के बाद हमें आउटपुट क्या मिला है, देखो रोल नंबर 12, नेम सुजाता, परसेंटेज इज दिस वन, रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज, रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज। तो जितने भी वैल्यूज हमने यूजर से ली है, जितने भी स्टूडेंट का डेटा हमने यूजर से लिया है, वही डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। आया समझ में? यस। Yes.